ओके, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करके देखते हैं. So this, as you can see, is an NPN transistor because this is the emitter terminal. This is the emitter terminal and current is flowing out of the emitter. So current is flowing from collector to emitter. And since the carriers always flow from emitter to collector, so that means carriers must be negative. Or in other words, it's an NPN transistor. So this transistor के लिए बीटा हमें दिया गया है, बीटा is 100 and it exhibits a VBE of 0.7 volt at IC is equal to 1 milliamperes. So ये देखिए स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है. क्या हमें ये कहा जा रहा है कि इस वक्त VBE 0.7 वोल्ट है और इस वक्त IC जो है 1 मिलीएम्पेयर्स है. हाँ जी, स्टेटमेंट का मीनिंग जरा बताइएगा. सर ये उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक पे एक पॉइंट है. एग्जैक्टली जस्ट लाइक डायोड में जिस तरह हम बात करते थे, दिस इज जस्ट सम पॉइंट ऑन द आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर. सो ये जस्ट एक पॉइंट हमें दिया गया है ताकि उसकी मदद से हम IS निकाल सकें या कोई सेकंड वोल्टेज और करंट का रिलेशन निकाल सकें. सो इस वक्त जो हमें कलेक्टर करंट बताया जा रहा है, इट इज़ 2 मिली एम्पेयर्स. So we need to design this circuit. So it's a design problem, which means कि we have a certain set of specifications available, जो कि यहाँ पर है कि voltage at the collector VC is 5 volts. और हमने इसको डिज़ाइन करना है, which means कि RC और RE की वैल्यूज़ हमने निकालनी है. So बीटा हमें 100 यहाँ पर दिया गया है. हमें बताया गया है कि VBE1 is equal to 0.7 volt at IC1 is equal to 1 milliampere. और जो करंट सिचुएशन है VBE2 वो हमने निकालना है corresponding to IC2 is equal to 2 milliampere. So this is the current that is flowing through the collector of this BJT. And also we are being told here that VC जो आपने achieve करना है, it is equal to 5 volts. So this is what we have. Let's now determine the values of RC and RE. So RC को determine करना is very straightforward क्योंकि VC भी आपको दिया गया है और IC भी आपको दिया गया है. IC is 2 milliamperes. So just apply Ohm's law. So by Ohm's law across RC, we have RC is equal to, by passive sign convention, 15 minus VC divided by IC. So this is 15 minus VC, हमें 5 volt दिया हुआ है, 5 divided by 2 milli. So it is equal to 5 kilo ohms. So RC तो अपने रेडीली निकाल लिया क्योंकि RC के थ्रू करंट भी पता था, RC के क्रॉस वोल्टेज भी हमें पता थी. सो RC निकल आया. अब हमने सेकंड काम ये करना है कि हमने यहाँ पर RE निकालना है. अब RE के थ्रू करंट जो है हमें पता है कि इट इज IE एंड एज्यूमिंग दैट के दिस ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव मोड. सो एक्टिव अगर ये एक्टिव मोड में है तो देन वी नो के IC इज इक्वल टू अल्फा IE और IE is equal to IC over alpha. And since beta is given, beta 100 हमें given है, so alpha is beta by beta plus 1, 100 by 101 और 0.9901. So ये हमारे पास यहाँ से IE हमने निकाल लिया. So IE आपके पास आ जाता है 2.02 milliamperes. So अगर हमें VE हम निकाल लें तो देन वी आर एबल टू डिटरमिन RE. सो RE के थ्रू हमने करंट कंप्यूट कर लिया और हमने भी RE के क्रॉस वोल्टेज निकाल ली है VE. तो VE निकालने के लिए हमें VBE चाहिए. सो VBE के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है, IC इज इक्वल टू IS एक्सपोनेंशियल ऑफ VBE बाय VT. So we can rewrite it as IC1 is equal to IS exponential of VB1 by VT. So where VB1 is 0.7 and IC1 is 1 milliampere, and we can also say that IC2 is equal to IS exponential of VBE2 divided by VT. So if you divide the second equation by the first one, we get IC2 divided by IC1 is equal to exponential of VBE2 minus VBE1 divided by VT.
or we have VBE2 minus VBE1 is equal to natural log ले लें दोनों साइडों पे VT natural log of IC2 divided by IC1। अब इसी एक्सप्रेशन में आप देखें तो हमें IC2 भी पता है, IC1 पता है, VT हम चूँकि प्रॉब्लम में टेम्परेचर की बात नहीं की गई तो VT को हम रूम टेम्परेचर पे ज्यूम करेंगे विच इज़ 25 मिली वोल्ट्स। VBE1 हमें गिवन है, VBE1 इज़ 0.7 वोल्ट, तो VBE2 यहाँ से निकाला जा सकता है। सो VBE1 हमें पता है, VT हमें पता है, IC2 पता है, IC1 पता है, तो दिस गिव्स अस VBE2 और VBE2 यहाँ से आपके पास आ जाता है 0.717 volts. So since VBE2 is equal to VB minus VE और यहाँ पर प्रॉब्लम में देखें VB is equal to 0. So that means कि VBE2 is equal to minus VE or in other words VE is equal to minus 0.717 volts. So now we have VE which means कि अब हम यहाँ पर पैसिव साइन कन्वेंशन से अप्लाई कर सकते हैं। पैसिव साइन कन्वेंशन की बेसिस पे we can determine by RE by applying Ohm's law. So RE is equal to VE minus 15 divided by IE. So VE आपके पास minus 0.717 है plus 15 divided by IE हमने निकाला है 2.02 मिली एम्पियर्स। सो RE यहाँ से हमने निकाल लिया, RE आपके पास आया है 7.0708 किलो ओम्स। सो ये आपकी डिज़ाइन प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट होगी बिकॉज वी हैव नाउ डिटरमिन्ड बोथ रेजिस्टर्स RE एंड RC। RC हमने निकाला था 5K और RE हमने निकाला है 7.0708 किलो ओम्स। जी ठीक हो गई ये प्रॉब्लम? सर जी जी ऐसे जो हमारे आंसर आते हैं इसमें जैसे दो रेजिस्टेंसेस क्या हैं, इसको सर क्रॉस वेरीफाई करने का कोई तरीका है? वो आप यही कर सकते हैं कि दोबारा से यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करके तो वापस VE को चेक कर लें फॉर एग्जांपल। ओके सर, यानी इस तरह से किया जा सकता है कि आप वापस VE निकाल लें करंट को पुट करके ताकि वो आपका मैथ्स जो है सेटिस्फाई हो जाए। ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट ये एक्सरसाइज D6.12 उसी तरह की है जिस तरह की पिछली प्रॉब्लम थी, जस्ट ये वैल्यूज चेंज है। अब आपके पास 15 वोल्ट की जगह 1.5 वोल्ट है, यहाँ पर -15 की जगह -1.5 है और VC आपको कहा जा रहा है कि वो 0.5 रखें, यहाँ पर 5 वोल्ट के बजाय 0.5 वोल्ट आपने अचीव करना है। तो सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम है, ये आप खुद कीजिएगा क्योंकि एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसीजर है। हम इससे अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। Exercise 6.13. So in the circuit shown in figure, the voltage at the emitter was measured and was found to be -0.7 volt. So ये हमें बताया जा रहा है कि ये -0.7 volt है। बीटा हमें कहा जा रहा है कि बीटा is 50 and we need to determine IE, IB, IC and VC. हाँ जी, any idea कैसे स्टार्ट किया जाए? सर आई तो डायरेक्टली वो ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। हम बिल्कुल IE हम निकाल सकते हैं। सो IE आपके पास आ जाता है -0.7 -10 divided by 10K और इट इज -0.7 plus 10 by 10K। सो ये आपके पास आ गया 0.93 मिली एम्पेयर्स। So if the BJT is in active mode, so then we can readily determine IC and IB. So IC is equal to alpha IE. बीटा हमें यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर आपने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं यूज़ करनी बल्कि जो गिवन वैल्यू है वो आप यूज़ करेंगे। So alpha is beta by beta plus 1. So it is equal to 50 by 51.
So this is equal to 50 by 51.93 milliamperes. So ये आपके पास यहाँ से IC निकल आता है, तो IC आपके पास आ जाएगा 0.98039. ये एटलीस्ट आपने 3 डेसिमल एक्यूरेसी इंश्योर करनी है. मैंने यहाँ पर ज़्यादा की हुई है, लेकिन एटलीस्ट 3 डेसिमल एक्यूरेसी इंश्योर करें. When current IE and IC are expressed in milliamperes, while IB is expressed in microamperes. So IB is IC over beta, and IC हम निकाल चुके हैं, बीटा हमें 50 गिवन है. So IB आपके पास आ जाता है 18.235 microamperes. तो IB is usually small, तो IB usually microamperes में आप एक्सप्रेस करेंगे जब IE और IC जो है मिली एम्पेयर्स में होंगे. एंड अगेन माइक्रोएम्प्स में जब आप एक्सप्रेस करें तो इंश्योर 3 डेसिमल एक्यूरेसी. सो ये हमने IE निकाल लिया, IB निकाल लिया, IC निकाल लिया. अब आपके पास VC रह गए. तो VC को अब चूंकि IC हमें पता है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अप्लाइंग Ohm's law अक्रॉस दिस 5K resistor. सो बाय Ohm's law अक्रॉस 5K resistor वी हैव 10 minus VC is equal to 5K times IC, or we can write it as 10 minus 5K IC equal to VC. तो यहाँ पर IC पुट कर दें. IC की वैल्यू हमने निकाली हुई है 0.98039. सो वी गेट VC इज इक्वल टू VC आपके पास आ जाता है यहाँ पर 5.44 वोल्ट्स. इसके बाद लास्ट स्टेप हमारा यूजुअली होता है वेरिफिकेशन का, क्योंकि हमने सारी एक्टिव मोड के रिलेशंस यूज़ किए हैं यहाँ पर. तो एक्टिव मोड के लिए ज़रूरी है कि एमीटर बेस्ड जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज़ रिवर्स बायस्ड. सो फॉरवर्ड बायस्ड कोई जंक्शन होता है तो उसके थ्रू करंट राइट पोलैरिटी के साथ शुड बी पॉजिटिव, जिस तरह हम PN जंक्शन डायोड्स की जब हम एनालिसिस करते थे. तो यहाँ पर आप देखें IE आपके पास पॉजिटिव आया है. सो IE इज़ पॉजिटिव, सो इट्स फाइन. EBJ इज़ फॉरवर्ड बायस्ड. CBJ रिवर्स बायस्ड है कि नहीं, उसके लिए क्या कंडीशन थी? CBJ को कैसे चेक किया जाए? EBJ तो चेक हो गया, हमने देख लिया कि IE पॉजिटिव है. तो IE अगर पॉजिटिव है तो दैट मीन्स कि हमारी assumption यहाँ पर ट्रू है. EBJ इज फॉरवर्ड बायस्ड. हाउ टू चेक CBJ? इसके लिए आप रिकॉल करें तो हमने रिलेशन डेवलप की थी. ये NPN ट्रांजिस्टर के लिए हमने कहा था द रिवर्स वोल्टेज VCB मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.4 वोल्ट्स. तो यहाँ पर VCB क्या है? VCB इज इक्वल टू VC माइनस VB विच इज इक्वल टू VC आपने 5.44 निकाला है. VB यहाँ पर देखिए, VB आपके पास 0 है, सो इट इज इक्वल टू 5.44. सो यस 5.44 is greater than or equal to -0.4 volt, so this is true. Thus we can conclude that CBJ is reverse biased and EBJ is forward biased. So our initial assumption is true. So इस तरह की जब problems में आप करेंगे तो you will start with an assumption. You will start with an assumption that the BJT is in active mode. You proceed with the analysis by utilizing these relations. VBE is equal to, by using these relations, IC is equal to alpha IE is equal to beta IB, and you proceed with the analysis. And at the end of the analysis, you verify that emitter based junction is forward biased and collector based junction is reverse biased. तो इस पर हम मज़ीद बात करेंगे जेनेरिक प्रोसीजर पे, और मज़ीद प्रॉब्लम्स भी आगे हम सॉल्व करके देखेंगे. तो ये आपके पास थी एक्सरसाइज 613. नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज 614. सबसे पहले बताइए ट्रांजिस्टर किस टाइप का है? इज इट एन NPN और PNP? PNP. PNP, right? Because you can see that the current is flowing into the emitter and out of the collector, which is only possible if the carriers flowing from emitter to collector are positive or P-type. So it's a PNP transistor. So इस PNP ट्रांजिस्टर में हमें बताया जा रहा है कि VB जो है आपके पास it is 1 volt. VE आपको कही जा रही है कि VE is 1.7 volt, and we need to determine alpha and beta for this transistor, and also we need to determine VC. So ये हमें conditions दी गई हैं. कोई आपने मेजरमेंट सुनी है लैब में
और ये आपको पता है। आपको भी नहीं पता कि इस ट्रांजिस्टर का अल्फा क्या है, इस ट्रांजिस्टर का बीटा क्या है। यहाँ पर हम अजम्पशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर हम ये अजम्पशन करके नहीं कह सकते कि बीटा 100 ले लें, क्योंकि यहाँ तो कहा जा रहा है कि बीटा आप निकालें। सो वी हैव टू यूज दिस गिवन इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्म द एनालिसिस एंड सी के बीटा और अल्फा की क्या वैल्यू आती है। एंड ऑल्सो में कहा जा रहा है कि वीसी भी निकालें। जी, एनी आइडिया कैसे प्रोसीड करें? सर आप आई को ओम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई को हम ओम्स लॉ से कैलकुलेट कर लेते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। सो आई इज, पहले हम यहाँ पर करंट्स की पोलैरिटी सुटेबल पोलैरिटी के साथ उन्हें लेबल कर देते हैं। सो दिस इज आई ई। सो आई ई इज इक्वल टू 10 माइनस 1.7 डिवाइडेड बाय 5K। ठीक है, आई ई आ गया। नेक्स्ट क्या किया जा सकता है? हाँ जी, और क्या निकाला जा सकता है? आई सी तो हम नहीं निकाल सकते, राइट? हमें वी सी अभी नहीं पता। वट अबाउट आई बी? जी, आई बी पे ज़रा कॉन्सेंट्रेट करें कि आई बी निकाला जा सकता है। अच्छा, ये करंट कौन सा है? वट इज दिस करंट? देखिए, ये 100K के थ्रू जो करंट है, ये आई बी ही नहीं है। देखिए, शुडंट दिस बी आई बी? बिकॉज ये जो करंट है आपके पास, इसके पास और कोई रास्ता नहीं है, राइट? ये यहाँ से 100K में से ही गुजरना है इस करंट ने। So applying KCL at this node, there is one current entering, one current exiting, and these two currents should be equal. So the current through 100K is IB. अब जरा देखिए IB क्या आ जाएगा? सर 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100K। So यहाँ पर जस्ट आपने ये नोट करना था कि आप IB भी निकाल सकते हैं। So ये आपके पास आ जाता है 10 माइक्रोएम्पियर्स। Now recall that कि IE is equal to IC plus IB, which means IC is equal to IE minus IB. So यहाँ से IC निकाला जा सकता है। IC आपके पास आ जाता है 1.65 मिली एम्पियर्स। ठीक है, अब हमें पिक्चर नज़र आना शुरू हो गई है कि क्योंकि अल्फा और बीटा आर द रिलेशंस ऑफ दीज थ्री करंट्स। सो अल्फा एंड बीटा कैन बी डिटर्मिन्ड नाउ because IE is equal to IC over alpha, और alpha is equal to IC over IE। so IC हम निकाल चुके हैं, IE हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से अल्फा निकाला जा सकता है। अल्फा यहाँ से आ जाता है आपके पास 0.99398। Similarly, IC is equal to beta IB, which implies IC over IB is equal to beta। सो IC को अगर आप IB से डिवाइड करें तो वी गेट बीटा इज इक्वल टू 165। सो अब हमने ये पहले दो काम कर लिए हैं, अल्फा भी निकाल लिया और बीटा भी निकाल लिया। अब जस्ट VC निकालना रह गया। VC को निकालना है स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स जस्ट वी नीड टू अप्लाई ओम्स लॉ अक्रॉस दिस 5K रेजिस्टर। सो वी हैव VC माइनस 5 इक्वल टू 5K टाइम्स IC, और VC इज इक्वल टू, जी सर VC माइनस 10 नहीं? हाँ सॉरी, ये -10 है जी, इसको करेक्ट कर लें। VC माइनस 10 इज इक्वल टू 5K IC। सो इस 10 वोल्ट को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो वी गेट, सो VC इज इक्वल टू 5K IC माइनस 10। सो ये आपके पास आ जाता है यहाँ से -1.75 वोल्ट।
जी, अब आप क्या बता सकते हैं कि जो हमने इनिशियल अजम्पशन एक्टिव मोड की है वो वैलिड भी है कि नहीं? लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट EBJ. इज EBJ फॉरवर्ड बायस्ड? इज EBJ फॉरवर्ड बायस्ड? क्या देखना पड़ेगा इसके लिए? सर आई जी एग्जैक्टली, IE को हमने देखना, सो IE इज पॉजिटिव, सो दिस इज ओके. व्हाट अबाउट CBJ? सो EBJ इज फॉरवर्ड बायस्ड. इज CBJ रिवर्स बायस्ड? उसके लिए क्या कंडीशन है? VBC ये अब ये चूंकि तो PNP है तो इसके लिए VC हम चेक करेंगे कि VBC नीड्स टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.4 वोल्ट. सो यहाँ पर VB आपके पास 1 वोल्ट है और VC आपके पास -1.7 है. सो 1 माइनस -1.75 must be greater than or equal to -0.4. So you can see that this is true because 2.75 is greater than -0.4. So this is true. So CBJ is reverse biased. So इसमें initial assumption हमने active लेके चले. प्रॉब्लम में कहा भी अल्फा बीटा कहा गया था निकालने को, तो लग भी रहा था कि वो एक्टिव में ही है, लेकिन एंड पे हमने उसको वेरीफाई भी कर लिया. सो अभी जो हमने ट्रांजिस्टर के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले हैं उसमें दे आर एक्सपोनेंशियली रिलेटेड. IC is IS exponential of VBE by VT. IB is IC over beta. IB is IC over beta and IE is equal to IC over alpha. So ये तमाम करंट्स जो हैं वो एक्सपोनेंशियली रिलेटेड हैं टू VBE. So IB is related to exponential of VBE by VT. IE is related to exponential of VBE by VT. IC is related to exponential of VBE by VT. So यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर ये 1 by VT आ रहा है वो टिपिकली रूम टेम्परेचर के ऊपर 1/25 मिली होगा विच इज़ इक्वल टू 40. तो इसको अगर हम मैटलैब में प्लॉट करके देखें तो यू विल सी दैट द कर्व राइजेस वेरी शार्पली. सो जस्ट लाइक जिस तरह हम PN जंक्शंस में स्टडी किया करते थे, यहाँ पर भी कर्व राइजेस वेरी शार्पली. तो इस पॉइंट पे हम क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं? हम इसलिए एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जस्ट लाइक जिस तरह डायोड प्रॉब्लम्स में हम देखते थे तो कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल हमने डेवलप किया था, तो इस केस में भी जो फॉरवर्ड बायस्ड एमीटर बेस्ड जंक्शन है उसके लिए सिमिलरली एक कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल डेवलप किया जा सकता है. So since this curve rises very quickly once the voltage VBE exceeds this cut-in voltage of 0.5 volt, and then the voltage VBE stays between 0.6 and typically 0.6 and 0.8 volts. So just like जिस तरह हम PN junctions के लिए किया करते थे, यहाँ पर भी emitter based junction के लिए we can say कि we can use a constant voltage drop model for quick analysis, and constant voltage drop model will imply that VBE is equal to almost equal to 0.7 volt. So this is the constant voltage drop model applied to a BJT. So when you know कि BJT का emitter based junction forward biased है और आपने quick analysis करनी है तो you will just apply constant voltage drop model, which means that VBE is equal to 0.7 volt. So since emitter based junction is forward biased for both active and saturation regions, so this constant voltage drop model is applicable in both these applications when you know that emitter based junction is forward biased. So we are saying that VBE typically lies in this narrow range of 0.6 to 0.8 volts. So in performing rapid calculations and for quick analysis, we can utilize the constant voltage drop model, and thus we will assume VBE equal to 0.7 volt. So this is for NPN transistor. Let's quickly extend this idea to a PNP transistor. So PNP transistor में जरा बताइए कि PNP transistor के लिए अगर आपने constant voltage drop model set करना है तो उसमें क्या किया जाए? Again we are saying कि emitter based junction of a PNP transistor is forward biased, तो उसमें कौन सी voltage को 0.7 volt आप set करेंगे PNP के लिए? VEB. तो just आपने यहाँ पर duality का ख्याल करना है and you know कि just आपने voltages की polarities को interchange करना है. So जो VBE का रोल NPN के लिए वो VEB का रोल है PNP ट्रांजिस्टर के लिए. So for an NPN transistor
we have VBE equal to 0.7 volt, and for a PNP transistor we have VEB equal to 0.7 volts. Also we have a rule of thumb here, और ये rule of thumb temperature के साथ related है. This rule of thumb tells us that the voltage across the emitter base junction decreases by about 2 millivolts for each degree centigrade rise in temperature, provided that the junction is operating at a constant current. तो अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक ही करंट पे सेट किया हुआ है, किसी कांस्टेंट करंट से फॉर एग्जांपल बायसिंग की हुई है आपने, और टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो दैट चेंज इन टेम्परेचर मीन्स दैट the emitter base junction voltage will decrease by about 2 millivolt for every 1 degree centigrade rise in temperature. So अगर आप NPN के लिए बात कर रहे हैं तो ये चेंज इन वोल्टेज आप VBE के पे अप्लाई कर रहे होंगे. अगर आप PNP के लिए बात कर रहे हैं तो आप VEB पे अप्लाई कर रहे होंगे. So we are saying कि per degree centigrade you get a decrease in VBE for an NPN transistor, you get a decrease in VEB for a PNP transistor, and that decrease is 2 millivolts for each degree centigrade rise in temperature. So let's apply this rule of thumb and let's do a problem और इस rule of thumb को apply करके देखते हैं. So exercise 6.15, we have a PNP transistor with VEB is equal to 0.7 volt at IE is equal to 1 milliampere. So again this is just some initial condition, some point on the IV characteristic of the BJT. और जो currently emitter current है वो आपके पास 2 milliampere है. It is not 1 milliampere. Currently it is 2 milliampere. Base is grounded. Emitter is fed by a 2 milliampere constant current source. The collector is connected to a minus 5 volt supply through a 1K resistor. If the temperature increases by 30 degrees centigrade, find the changes in emitter and collector voltages. तो ये हमें कहा जा रहा है. तो यहाँ पर हमने जो भी हमने रूल ऑफ थंब देखा है कि 2 मिलीवोल्ट की डिक्रीज आनी है फॉर एवरी डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, तो वो हम यहाँ पर अप्लाई करके इसका इफेक्ट निकाल सकते हैं. साथ हमें कहा जा रहा है निगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ ICBO. सो ICBO रिवर्स करंट है थ्रू द रिवर्स बायस्ड CBJ. तो उसको आप वो कह रहा है कि उसके इफेक्ट को भी हमने स्टडी नहीं करना, क्योंकि रिवर्स करंट्स पे भी आप रिकॉल करें तो रूल ऑफ थंब लगता है, तो इसको हम स्टडी नहीं कर रहे. हम जस्ट अभी देख रहे हैं कि VEB किस तरह से चेंज हो रहा है विद द राइज इन टेम्परेचर. तो सबसे पहले सर्किट बना लेते हैं. सो वी हैव अ PNP ट्रांजिस्टर. सो PNP ट्रांजिस्टर है आपके पास. हमें बताया जा रहा है कि द एमिटर इज टू बी फेड बाय 2 मिलीएम्पेयर कांस्टेंट करंट सोर्स. सो वो 2 मिलीएम्पेयर का कांस्टेंट करंट सोर्स है. यहाँ पर जो भी चूंकि कांस्टेंट करंट सोर्स है तो इस एंड पे जो भी पावर सप्लाई या वोल्टेज की वैल्यू दैट विल नॉट मैटर. बेस हमें बताया जा रहा है emitter is fed by constant current source. Collector is to be connected to a minus 5 volt supply through a 1K resistor. So collector को हमने 1K resistor के थ्रू minus 5 volt supply के साथ कनेक्ट करना है. Base is grounded. So base is grounded. So this is the circuit that we have. और साथ हमें कहा जा रहा है कि टेम्परेचर जब राइज करेगा, सो पहले हमने इसकी एनालिसिस करनी है एट रूम टेम्परेचर, और उसके बाद हम कहेंगे कि टेम्परेचर जब राइज कर रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हुआ तो रिजल्ट्स किस तरह से चेंज हुए. तो उसके लिए रूल ऑफ थंब हमारे पास क्या है कि आपका VEB विल डिक्रीज बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर बाय 2 मिलीवोल्ट फॉर ईच डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर. सो अगर 2 मिलीवोल्ट की डिक्रीज आ रही है, 2 मिलीवोल्ट डिक्रीज फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड राइज के लिए क्या आएगी डिक्रीज जी? 60 मिलीवोल्ट 60 आ जाएगी, राइट. सो दैट मीन्स कि हमने जस्ट रूम टेम्परेचर पे अगर आप VEB निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपने 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करने के लिए जस्ट जो आपने रूम टेम्परेचर पे VEB निकाला है उसमें से 60 मिलीवोल्ट माइनस कर देना है, and you get the results when the temperature has increased by 30 degrees centigrade. So let's analyze the circuit at room temperature and then we will determine कि ये डिग्री सेंटीग्रेड राइज के साथ जस्ट उसमें 60 मिलीवोल्ट माइनस करेंगे तो we will get the final answer.
So VEB decreases by 2 millivolt for every 1 degree centigrade rise in temperature, which means VEB will decrease by 4 millivolt for every 2 degree centigrade, and VEB will decrease by 6 millivolt for every 3 degree centigrade rise in temperature. So you can see the general trend here. So that means कि जब आप 30 degree centigrade rise की बात करते हैं तो उस केस में VEB decreases by 60 millivolts. So let's first determine कि VEB क्या है, and once we have the VEB, then we can just subtract 60 millivolt from that number and get the final result at 30 degree centigrade rise in temperature. So इस प्रॉब्लम में आपको ये उसने एक इनिशियल बायस पॉइंट दिया हुआ था. So VEB1 is 0.7 volt, IE1 is 1 milliampere, और हमें कहा जा रहा है कि IE2 पे 2 milliampere के लिए VEB निकालें. तो आपके पास रिलेशन है IE is equal to IS over alpha exponential of VEB by VT. So आप इसको IE1 और VEB1 की टर्म्स में लिख सकते हैं, IE2 और VEB2 की टर्म्स में लिख सकते हैं. So if you divide these two equations, you get IE2 divided by IE1 is equal to exponential of VEB2 minus VEB1 divided by VT. Just like जिस तरह अभी हमने पिछली प्रॉब्लम में IC के लिए किया था, यहाँ पर वो सेम एक्सरसाइज हम IE के लिए कर रहे हैं. So एज अ कॉन्सिक्वेंस आपके पास VEB यहाँ पर आ जाता है 0.71733 volts. तो ये आपके पास VEB आ गया. Once you have this VEB, now you can determine at a temperature rise of 30 degree centigrade. So बताइए जरा VEB at temperature rise of 30 degree centigrade क्या आ जाएगा आपके पास. इसमें से जस्ट आपने 60 मिली माइनस कर देना. सो ये आपके पास रिजल्टिंग VEB आपने निकाल लिया. सो इट इज इक्वल टू 0.65733 volts. So ये आपके पास VEB आ गया at when the temperature is raised by 30 degree centigrade. जी, any question in these problems?